पर चेक कर लीजिए, क्लियर है ना? ओके, once again welcome back Sunday special classes. Today we will discuss noun, and when we talk about noun, in noun we will not read about only noun. In noun we will also read about the number, the gender and the case. We will not read the definition of these topics, but we will see the remarkable topics, the important topics that will be mostly asked in the examination. Okay, so at first we will see noun, and later on noun we will see number, and then again gender, then again case. Okay, so let's start with the noun. Do you know noun? I hope most of you know the definition of noun. If I ask, will you answer? Okay, tell me. Very good. Very simple. A noun is a naming word. A noun is the name of person, place, animal, or thing. There is no need to write definition because definition is not asked anywhere. We will see the top. We have to focus mainly on collective noun and abstract noun, because most of the question came from collective noun and also abstract noun, because abstract noun is singular. Sometimes it came in the sentence with the plural verb. So we have to focus on abstract noun and collective noun. Okay, we will also see proper noun, because proper noun is also always singular. Okay, so how many kinds of noun are there? There are 5 kinds of noun, right? There are 5 kinds of noun. The first is proper noun, second proper, common, collective, material and abstract noun. Okay, so these days called countable, and material and abstract, they are called uncountable noun. Okay, proper will remain proper, proper will remain proper, proper will remain proper. There are also 3 kinds. The third, uncountable. These days, these days, there is also third division of noun. The first 4, the first 4 is known as concrete noun. The first 4 is known as concrete noun, and the fifth will remain abstract. Okay. So now there are three form of division of noun. Earlier we read there are 5 forms of noun. How many? 5 forms of noun. There is no need to learn the definition of these things, because definition is asked nowhere and it also come nowhere. We have to see the following term that will come in the examination. So the first is proper, second common, third collective, fourth material, and the fifth abstract. The first, proper, will remain proper, and common and collective together called countable, and material and abstract together called uncountable. These days there is also new division. The first 4 is known as concrete. The first 4 is known as concrete, and the last abstract is known as abstract. Okay. These 2 kinds are divided on the basis of sense. On the basis of sense. In abstract noun we can use only one sense, but in concrete we can use more than one sense. That is the division of new term. So if someone asks you what is, on which basis it is divided, you can say it is divided on the basis of sense organ. It is divided on the basis of sense organ. In abstract noun we use only one sense organ. Okay, but in concrete we can use more than one. That is the only division. So do you know the definition of proper noun? I will not write, just you have to say. Okay, answer. Wait, any student of class 9, any student of class 9, not earlier, even a recent student, any student of class 9, raise your hand and answer proper noun. Very good. So it is the name of particular or a special person, place, animal, or thing. If you add a word particular or a special in the definition of noun, it became proper noun. Okay. So a proper noun is the name of particular person, place, animal, or thing. Will you give me
some example of proper noun? Okay. Give me give me example of proper noun that will fall in thing. That will fall in thing. Because you know proper noun that will come in noun, that is come in name, also come in place, also come in animal. Will you give me for example of animal? No, no, no. It's a common, not proper. It's not a common. The white tiger, no, no. More Tommy. Very good. So when we have to write proper animal name, then we have to use a pet name. What? The name of any pet animal, it is used as a proper noun. But when you say the lion, the tiger, the cow, the ox, it is not a proper noun. It is a common noun. If you are saying that the name of animal, it is a proper noun, so you are thinking wrong. Okay? Name of any pet animal became a proper noun. Now give me some example of thing that will fall in proper noun. Sit down. Stand up. What? No, no, it's not a proper noun. It is a common noun. Give me example of proper noun that related to thing. What? Ring. It's also a common noun. Okay, let's. Diamond ring also. One is the adjective, other is a common noun. Okay, let's see. So, let's see the example of proper noun. Okay, it will help you a lot. In the first, name of any person. Name of any person. As we know, every person in this world has a definite name, right? हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नाम है. किसी का नाम पप्पू है. ये राइट नेम है, हंसने वाली कोई बात नहीं है. पता नहीं क्यों बोलता हूं तो लोग. So any every person in this world has a name, and that name denote that he or she is a particular, means he is a proper noun. Okay. Next, name of any place. Name of any place. We know we live at Muzaffarpur. We live at Muzaffarpur. It is in Bihar, and Bihar is in India, and it is in Asia. So the following name that I have used, it is all a proper noun. Okay. So name of any place, it is a proper noun. Remember, boy is common, but name of boy proper. Girl is common, but name of girl. Father is common, but name of father. Uncle is common, but name of uncle. Okay. In the same way, village. Village is common, but name of village proper. District is common, but name of district. Country is common, but name of country. Capital is country, but name of capital. Is that clear? Okay. When we come to animal, name of any pet animal. Name of any pet animal. Sometime when we pet any animal, do you know pet? What is the meaning of pet? That one. It's known as a stomach. Okay. Stomach and belly. So here is the word pet. Pet means domesticate, right? पालतू बनाना, right? So किसी भी जब हम पालतू एनिमल, कोई भी एनिमल को जब हम पालतू बनाते हैं, sometime we give him or her a name, right? Sometime, not all the time. When we give him or her a name, it is known as a proper noun. When we don't give him or her a name, it is known as a common noun. Is that clear? Now come to thing. Name of anything. So let's see what will come. Name of anything. So we have to see example in things. Okay. Name of anything. In English, name of river. Name of river. Name of river. Rivers. River is treated as non-living thing. River is treated as non-living thing. So it is a non-living thing. So it is treated as a thing. जितने भी non-living चीज होते हैं उसको किस में रखते हैं हम लोग? Thing में.
So name of river or any water bodies. Name of river or any water bodies. Of mountains or its peak. Name of mountain and its peak. Name of mountain and its peak. Name of its mountain and its name of its mountain and do you know peak? Do you know the meaning of peak? Yeah, the highest tip of any mountain is known as peak. Okay, so name of river or any water bodies, name of mountain, peaks, desert. Do you know name of any desert? Yeah, so they are proper noun. They are proper noun. They all will fall in proper noun and it will come in things. Name of day and month. Name of day, days and month. Days and how many days are there? There are 7 days. There are 7 days. It has a name. All the name is known as a proper noun. And there are 12 months. All months has a particular name. It is known as a proper noun. Next, name of any language or language originated subject or language originated. What is the meaning of language originated subject? What is the meaning of language originated subject? What is the meaning of language originated subject? Don't know. ओके ऐसा सब्जेक्ट जो लैंग्वेज से बना हो, जैसे इंग्लिश जो है सब्जेक्ट भी है और क्या है, लैंग्वेज भी है. हिंदी जो है सब्जेक्ट भी है और क्या है, लैंग्वेज भी है. संस्कृत सब्जेक्ट भी है और लैंग्वेज भी है. उर्दू भी है. उसी प्रकार जितने भी राज्य हैं उन सब की एक भाषाएं हैं और उनकी एक लैंग्वेज भी है और वो सब्जेक्ट के रूप में भी पढ़ी जाती है. तो लैंग्वेज ऑरिजिनेटेड जितने सब्जेक्ट है वो प्रॉपर नाउन कहलाएंगे. लैंग्वेज के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? बस यहीं पे क्वेश्चन फंसेगी आपकी. अगर अब यहाँ पे लिख दें कि सब्जेक्ट के नेम क्या है, तो सब्जेक्ट के नेम प्रॉपर है या एब्स्ट्रैक्ट है? नहीं. तो सब्जेक्ट के नेम ना प्रॉपर है ना उसमें कुछ सब्जेक्ट के नेम क्या हो जाएंगे, प्रॉपर, कुछ क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट. और कौन प्रॉपर है उसको याद करेंगे, कौन एब्स्ट्रैक्ट है उसको याद करेंगे. दोनों केस में वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी क्योंकि प्रॉपर नाउन भी सिंगुलर होती है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी सिंगुलर होती है. तो जितने भी लैंग्वेज ऑरिजिनेटेड सब्जेक्ट है वो आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे और जो रेस्ट बच जाएंगे वो किस में आ जाएंगे, यानी साइंस रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हो गए वो कौन सा नाउन? म्यूजिक. म्यूजिक इज ऑल्सो अ साइंस. म्यूजिक को भी हम लोग साइंस में रखते हैं. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स भी एक सब्जेक्ट है, पता है? स्टैटिक्स आप लोगों को पढ़नी है क्लास 11 में, पढ़नी भी है, राइट? सो इकोनॉमिक्स, ये सारे के सारे साइंस के पार्ट है. जो सोशल साइंस है, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. गुड. नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. नेम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है. यस यू कैन राइट. Yes, you can write. Name of any organization, any company, it is also used as a proper noun. Name of any school, school is an organization. So they will all come in a proper noun. तो proper noun भी अगर आप पढ़ेंगे तो proper noun के बहुत सारे एग्जाम्पल है और वो आपको जानने पड़ेंगे क्योंकि proper noun में 2 एरर हो सकते हैं. पहला, उसको आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगी. सेकेंड, अगर प्रॉपर नाउन है तो वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगुलर होगी. क्लियर? सो अगर इसमें आपको कुछ लिखने का है तो आप लिख सकते हैं. लगता है कि प्रॉपर नाउन में कुछ लिखा जा सकता है. सबसे ज्यादा जो है इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे इसी पे क्योंकि आपको सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल वहीं से मिलेगी. और पूरे इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर अगर आप पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर में 2 ही चीजों पे ध्यान रखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल. तो जब तक आप सिंगुलर प्लूरल जानेंगे नहीं, सेंटेंस कभी यूज होने वाली आपसे है नहीं. ओके, आई विल प्ले नेक्स्ट.
Those who have already written, I think 7 and 8 they have written. There is no need to write. उनको लिखने की जरूरत नहीं है. जो लोग लिख चुके हैं तब तक उनसे एक दो क्वेश्चन है. अच्छा बाबू, आपको इसका प्लूरल बता. चलिए बाबू खड़े हो जाइए. नेक्स्ट पेज. वेट फॉर अ मिनट, लेट मी आस्क अ क्वेश्चन एट फर्स्ट. स्टैंड अप. इसमें क्या ऐड करेंगे एक्स्ट्रा में? एस ऐड करेंगे ना, यहाँ पे एस ऐड कर दिए. प्लूरल हो गई. ओके नेक्स्ट. इसमें यस लगेगी. ठीक है, तो इसमें बताइए. अच्छा, आप में से कौन आंसर करेंगे? इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे एडिशनल में? अच्छा, दोनों में एस. यहाँ पे क्या ऐड करेंगे बाबू? यहाँ पे यस. क्यों? क्यों नहीं पता, बट करते हैं. वैसे उनका आंसर सही है. सिट डाउन. आंसर सही है बाबू. जब सी एच का प्रोनाउंसिएशन च हो तो हम लोग वहां पे ईएस ऐड करते हैं. क्या ऐड करते हैं? ईएस. और वही सी एच का प्रोनाउंसिएशन अगर क हो तो एस ऐड करते हैं. यही रूल है इसका. समझ में आ गई? लेट्स सी. आई आपको समझ में? आपको समझ में आई? इसमें जो नहीं लिख रहे हैं उनके लिए भी नीचे एक क्वेश्चन है. आई हैव डन much, comma, many, work. Now tell me which option is suitable? Much and many. I have done much work or I have done many work? Many होगा. Okay, so remember work is uncountable noun. Okay, so your answer became much. ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिटरमिनेंट्स. ये क्वेश्चन किसके हैं? डिटरमिनेंट्स. डन. अच्छा, हम लोग प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं कि नहीं? प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना सकते हैं? नहीं. प्रॉपर नाउन को हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते हैं, कुछ केसेज को छोड़ दे तो. कुछ केसेज मतलब अगर जो लोग टेंस पढ़े हैं तो टेंस में मैंने एक टाइमिंग वर्ड लिखाया है, संडेज, मंडेज, ट्यूसडेज, ये सब लिखाया है ना. उस केस में वो प्लूरल बनेगी. ठीक है, इन द केस ऑफ एवरी संडे. और अगर किसी के फैमिली का नाम हो, क्या हो? फैमिली का नाम हो, तो फैमिली के नाम में भी आप क्या ऐड कर सकते हैं? एस ऐड कर सकते हैं. जैसे कि जितने भी एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर, चोलाज, मुगल एम्पायर, तो जितने भी एम्पायर है उन सब में भी आप क्या ऐड कर सकते हैं? एस ऐड कर सकते हैं. इवन दे आर प्रॉपर नाउन, उसमें आप ऐड कर सकते हैं एस.
क्योंकि जब भी हम किसी डायनेस्टी के नाम में अगर एस ऐड करते हैं तो वो पूरे का बोध कराती है, तो वहां पे आप एस ऐड कर सकते हैं। क्लियर? तो ये दो केसेज है जहां पे आप प्रॉपर नाउन में क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे। एग्जाम्पल ये भी ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकर है बाबू आगे इसको राइट। जैसे हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते मंडेज लिख सकते हैं, लेकिन जनवरी में एस लगाने की जरूरत नहीं है। जनवरीज नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगी सर। संडेज हो जाएगी, मंडेज हो जाएगी। हाँ, आप 7 डेज में एस ऐड कर सकते हैं। ये मुगल का स्पेलिंग सही है, देखिए तो तब मुगल्स लिखते हैं, मुगल्स, मुगल्स पढ़ते मुगल है, पढ़ते क्या, लिखते क्या है, मुगल्स। इसको मुगल लिखा हुआ है लेकिन पढ़ेंगे क्या, क्या लोग गोस्ट क्या पढ़ते हैं। यहां भी एच साइलेंट है, वहां भी एच साइलेंट है, यहां भी एच साइलेंट है। जी को साइलेंट नहीं कीजिएगा ना तो वो होस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, होस्ट अच्छा वर्ड है ना कि निगेटिव, होस्ट अच्छा है कि निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है ना। खून चूसने वाले को होस्ट कहते हैं, राइट रॉन्ग, खून चूसने वाले को होस्ट कहते हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, गेस्ट, गेस्ट को, गेस्ट को खून चूसने वाले कहते हैं, राइट। गेस्ट को क्या कहते हैं बुआ, गेस्ट को कहते हैं खून चूसने वाला ना, नहीं। अच्छा साइंस, साइंस में गेस्ट को खून चूसने वाला कहते हैं कि नहीं, सोच के देखिए पहले आप, गौर से सोच के देखिए। जब आप टाइप ऑफ एनिमल पढ़ते हैं तो उसमें एक एनिमल आता है पैरासाइट आता है, तो उसमें एक होस्ट होता है, एक गेस्ट होता है, तब तो आप समझ गए ना। बिल्कुल। हैव यू रिटन? Shall I go ahead? Okay, let's see. Name of rivers, mountain, peaks, deserts, name of days and months, name of any language or language originated subject, name of any organization, company, etc. They are all treated as proper noun. Okay. There are a lot of example of proper noun. Name of magazine, name of any TV show. Where? Third, name of any language or language originated subject. Done? Okay. Now see common noun. We will not see the definition. We will see only example. Okay. Some example of common noun. Okay. At first, anyone will you answer what definition of common noun? I will not write. If you are able to answer, just answer.
Just you have seen. He has already written. Okay, sit down. Any student of class 9 and 10? Any student of class 9 and 10? Will you answer the definition of common noun? Yes. You have to do nothing, as we have add particular or special in proper noun. In common noun you will add common or general. Common or general. Sit down. Very good. So a common noun is the name of common person, place, animal or thing, or general person, place or animal thing. When we say common noun, it does not denote one. It does not denote one. It denotes the whole. Whole means वो उस रेस के, उस काइंड के सारे का बोध करा देता है. Here when we write boy, it does not denote any kind of particular boy. मैंने यहाँ पे अगर लड़का लिखा तो क्या किसी एक लड़के को ये डिनोट करना है? No. It denote the whole race. It denote the whole race. The same way, girl, mother, father, any animal name such as lion, deer, sheep. Yes, you can also write giraffe. Okay. You can also write giraffe. Okay. जिराफ के स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. जिराफ की स्पेलिंग को ध्यान रखेंगे. स्पेलिंग में एरर आ जाती है इसमें. क्लियर? तो इसमें जितने भी मटेरियल्स हैं, आप अपने आसपास अभी जितने भी मटेरियल्स देख रहे हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? कॉमन नाउन है. इवन की फैन, बल्ब, स्मार्ट बोर्ड, टेबल, चेयर, बेंच, दे आर ऑल कॉमन नाउन. ओके. सो कॉमन नाउन में आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सिंगुलर प्लूरल से आएंगे. इसमें से कुछ विशेष क्वेश्चन नहीं आते हैं. तो कॉमन नाउन में आपको ज्यादा नहीं देखनी है, बट कलेक्टिव नाउन में बहुत अच्छे से पढ़नी है. कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन क्या है? तो ये किसी एक ही चीज के कलेक्शन के लिए एक पार्टिकुलर वर्ड का यूज करती है. किसी एक ही चीज के कलेक्शन के लिए एक पार्टिकुलर चीज का यूज, एक पार्टिकुलर वर्ड का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे अब जजेस के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? जजेस के समूह को क्या बोलेंगे? सबको ग्रुप नहीं कहेंगे बुआ. अब कलेक्टिव नाउन में अगर सब के लिए ग्रुप ही कह दे तो फिर कलेक्टिव नाउन का यूज ही क्यों करेंगे? अ टीम ऑफ जज. नो. बेंच ज्यादा बेनिफिट होगी. क्लियर? इसके लिए 3 वर्ड्स का यूज करते हैं. अ बेंच ऑफ जजेस, अ पैनल ऑफ जजेस एंड अ जूरी ऑफ जजेस. तो आप इस तरह से कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे. चलिए हम 10 कलेक्टिव नाउन लिखते हैं और उससे संबंधित जो है कलेक्टिव नाउन के लिए कुछ क्वेश्चन है, वेट करेंगे भी. कलेक्टिव नाउन को ग्रामर में कैसे यूज करते हैं देखेंगे. कलेक्टिव नाउन जब हम यूज करेंगे तो उसके सबसे पहले फर्स्ट में क्या आएगी? आर्टिकल ए या एन में से कोई एक. क्योंकि हम यहाँ जो नाउन यूज करेंगे उसी के साउंड के अकॉर्डिंग हम ए और एन का यूज करेंगे. और आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे? ऑफ का. एवरी केस में किसका यूज करेंगे? ऑफ. और यहाँ पे जो यूज होगी इसको बोलते हैं कॉमन नाउन. क्या बोलते हैं? अब ये कॉमन नाउन में क्वेश्चन आते हैं प्लूरल, तो ये होगी आपकी प्लूरल. कॉमन नाउन क्या होगी? और यहाँ पे अब आपको वर्ब यूज करनी पड़ेगी. क्या यूज करनी पड़ेगी? तो वर्ब क्या होगी? ये वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल? वर्ब सिंगुलर होगी या प्लूरल? वर्ब होगी आपकी सिंगुलर. वर्ब क्या होगी? क्योंकि उसका रीजन है, जो लोग खास करके पहले किसी भी क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हो तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे. इससे पहले, प्रीपोजिशन से पहले जो वर्ड रहती है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है. राइट? प्रीपोजिशन से पहले जो आपका पार्ट है उसी के अकॉर्डिंग हम किसका यूज करेंगे? वर्ब का. तो प्रीपोजिशन से पहले आपको ऑलरेडी दिखाई दे रही है ए और एन, यानी वन को डिनोट करेगी. किसको डिनोट करेगी? तो ये क्या हो जाएगा बाबू? सिंगुलर. ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पूछे जाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 7 से लेकर के 10 तक का पार्ट है. क्लियर? तो आप इस रूल को ध्यान रखेंगे. पर इसी में अगर हम ए एन के जगह पे सब प्रोसेस सेम रहेगा. अगर हम यहाँ पे द यूज कर दें, क्या यूज कर दें? द. तो जैसे ही द यूज करते हैं तो कलेक्टिव नाउन का बेस खत्म हो जाता है. कलेक्टिव नाउन का बेस खत्म. यहाँ पे आएगी तो कलेक्टिव नाउन ही, लेकिन वो उसका बेस हो जाएगी. और
अगर हम यहाँ पे द यूज करते हैं तो क्या होता है, द यूज करेंगे तो ऑफ प्लस कॉमन नाउन भी हट जाएगी, ऑफ प्लस कॉमन नाउन भी हट जाएगी। इसे एक एग्जांपल ही मैं आपको लिख करके बता देता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगी। द जूरी was were divided in its opinion, in its opinion। इसी क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करेंगे यहाँ पे, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, इन देयर ओपिनियन। सेंटेंस लगभग दोनों सेम है, बस इसमें एक जगह का अंतर है। आप देख रहे हैं कहां पे क्या अंतर है। ओके, तो अब हमको अगर फर्स्ट में यूज करनी है द जूरी वाज वेयर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन, किसका यूज करेंगे, वाज और वर। वाज क्यों करेंगे फर्स्ट में बाबू, वाज का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट्स है। इट्स सिंगुलर होती है क्योंकि ये इट का फॉर्म है, इट्स जो है सिंगुलर है, इट का फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे वाज का यूज करेंगे। और इसी केसेस में यहाँ वर का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लेकिन अगर इन दोनों केसेस में बाद के पार्ट को आपको हटा दिया जाए, द जूरी वाज ऑब्लिक वर, लिख दें, तो जब भी होगी तो कितने पार्ट होगी, दो पार्ट हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगी प्लूरल। अगर इस पार्ट को हम आगे हटा देते हैं, केवल डिवाइड है, डिफरेंशिएट है, बाइसेक्ट है, बाइसेक्ट जानते हैं ना, इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट मतलब ये होता है दो अलग अलग पार्ट, तो जैसे ही ये बट जाएगी तो ये प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि बटने से इसके अनेक हिस्से हो जाएंगे। लेकिन अगर आगे ये जोड़ा हुआ है तो इस पे डिपेंड करेगा, नहीं जोड़ा हुआ है तो इस वर्ड पे डिपेंड करेगा। ओके, इसमें एक वर्ड और जोड़ता हूं, द जूरी, जूरी के जगह पे आप टीम भी लिख सकते हैं। जैसे आपने चक दे इंडिया देखा होगा ना, चक दे इंडिया देखे आप, शाहरुख खान की मूवी है, उसमें जो प्लेयर होते हैं आपस में जेलसी करते हैं ना, तो जेलसी करने से हम लोग एक रहते हैं या अलग हो जाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे द टीम वाज वर इन जेलसी, इन जेलस, इन जेलसी। यहाँ पे बाबू हमने प्रीपोजिशन यूज किया है, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, नाउन आती है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आती है, क्योंकि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करती है। अगर हम यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लिखते तो क्या, जीलस, ये एडजेक्टिव है और ये आपका नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अगर हम इस केस में देखते हैं कि द जूरी वाज वर इन जेलस, जेलस है तो स्वाभाविक सी बात है क्या है, अलग है, जेलस है इसलिए क्या है, अलग है। लेकिन अगर एग्री होंगे, यूनानिमस होंगे, तो वो एक साथ होंगे। इसी क्वेश्चन में अगर हम ऐड करें एग्री और यूनानिमस तो वो क्या हो जाएंगे, द क्रू is oblique are agreed to each other, agreed to each, agreed, sorry, we will not write agreed, write agreed with, okay, the crew is or are agreed with each other। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं बाबू, हमने एग्री कर दिया ना यहाँ पे, तो जैसे ही एग्री करेंगे तो एग्री में हम लोग हमेशा होते हैं एक, एग्री में एक रहेंगे, डिवाइड करेंगे, डिफर करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, हो जाएंगे अलग, प्लूरल हो जाएगी। तो ये भी कलेक्टिव नाउन ही है, लेकिन जब द आएगी तो रूल अलग है, ए एन आएगी तो रूल अलग है, वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए हम लोग उससे कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। अ डैश ऑफ प्लेयर्स, अब यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन फिल करनी है। अ डैश ऑफ टीचर्स, अ डैश ऑफ टीचर्स, अ डैश ऑफ लायंस, a dash of camel, a dash of sheep, a dash of deer, deer। देखो बाबू आप गौर से देखना, सीप और डियर में मैंने एस नहीं लगाया, राइट, सीप और डियर में एस लगी है क्योंकि लगती भी नहीं है।
इसलिए नहीं लगाई गई है कि लगती भी नहीं है। अगर इसका सिंगुलर बनाना है तो हम लिखेंगे अ शिप, और प्लुरल बनानी है तो क्या लिखेंगे? शिप, प्लुरल बन गई। सिंगुलर बनाना है तो, प्लुरल बनानी है तो डियर। तो इसका जब हम प्लुरल बनाएंगे तो इसमें एस नहीं लगेगी, ध्यान रहेगा। तो प्लेयर के लिए किसका यूज कर सकते हैं आप बताइए तो? प्लेयर के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? टीम ऑफ प्लेयर्स, और आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं डॉक्टर। डॉक्टर के भी समूह को क्या बोलते हैं? ओके, अ डैश ऑफ टीचर्स। आप लोग देखिए, जिसका कलेक्टिव नाउन नहीं आ रहा है उस सब में ग्रुप जोड़ देनी है, ठीक है? ये बाद का ऑप्शन है, पहले जिसका आ रहा है उसको जानना है। उसको फैकल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बुआ? टीचर के समूह को क्या बोलते हैं? फैकल्टी। आप जानते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते कि ये टीचर के लिए यूज होती है। तो फैकल्टी ऑफ टीचर्स। लायंस के लिए क्या बोलते हैं बाबू? प्राइड। कैमल्स के लिए ट्रेन। कैमल के लिए क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं पता है? कैमल के समूह को ट्रेन क्यों कहते हैं पता है? अगर आप रेगिस्तान में कैमल को चलते हुए देखेंगे तो बिल्कुल वो वैसे ही चलते हैं जैसे ट्रेन चलती है। अडैप्ट शिप। शिप के समूह को क्या बोलते हैं बुआ? या बर्ड समूह को भी क्या बोलते हैं? पढ़े हुएगा, अ फ्लॉक ऑफ फीदर फ्लॉक, अ बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। चोर चोर मौसेरे भाई, पढ़े हैं? तो उसी में होता है अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ बर्ड ऑफ फ्लॉक, अ बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लॉक टुगेदर। और डैश ऑफ डियर। तो डियर के समूह को बाबू हम लोग बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड। और कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ओके? थोड़ी सी इस बार ज्यादा देखेंगे हम लोग। इसमें 10 देखते हैं। डैश ऑफ चिल्ड्रेन, डैश ऑफ चिल्ड्रेन। अच्छा, इसमें चलिए इसके लिए भी बता दीजिए। और मैं जानता हूं कि इसका कलेक्टिव नाउन मेरे को यहां कोई नहीं बता सकता। 110% इसका कलेक्टिव नाउन कोई नहीं बता सकता। और हम लोग के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुई है कलेक्टिव नाउन से तो ये यही क्वेश्चन है। देखो बुआ, इसका तो सब लोग जानते ही होंगे, इसका नहीं जानते। क्या हम लोग ग्रास को काउंट कर सकते हैं? इसलिए इसमें ईएस ऐड नहीं करेंगे, ओके? क्या हम लोग हेयर को काउंट कर सकते हैं? तो इसमें भी हम लोग एस ऐड नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पे ये रिपीट हो रही है। इसका अब इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। मैंने ही लिखाया है, मेरे को भी पता है। मैंने ही, जो दिमाग में आएगी उसी उसी को ना लिखा जाएगा। ओके बाबू, अटैच ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चे के समूह को क्राउड कहते हैं।
लिख सकते हैं। अब जो ग्रुप बोल रहे हैं वो ग्रुप के चिल्ड्रन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर चिल्ड्रन के लिए क्राउड शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका मतलब है कि वो बच्चा सब ना हाथ में सोटा डंडा लेकर के किसी को मार करने गया है। जैसे ही अगर आप लिखते हैं क्राउड ऑफ चिल्ड्रन, इसका मतलब है कि बच्चा मार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये चीज को ध्यान रखनी है। समझ में आ गई? तो चिल्ड्रन के लिए नहीं लिखेंगे, आप पीपल के संदर्भ में लिख सकते हैं अ क्राउड ऑफ पीपल। क्या? अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है, बच्चे का ग्रुप होता है, क्लास भी बच्चे क्लास में होते हैं तो क्लास होता है। ग्रुप अच्छा वर्ड है। जब हम क्राउड का इस्तेमाल करते हैं तो क्राउड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे अगर हम क्राउड में मोस्टली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो क्राउड ऑफ पीपल, पीपल के लिए। जहां भीड़ होती है तो भीड़ में लोग ये नहीं समझता है कि कौन अपना है कौन क्या है, धक्का मार करके आगे निकल जाते हैं, जॉसलिंग करते हैं। क्या करते हैं वो? जॉसलिंग, इसको बोलते हैं जॉसलिंग। धक्का मुक्का, किसी के पैर पे लात रख दिए, निकल गए ऐसे, तो इसको क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड में एक क्राउड होती है और एक मॉब होती है। क्या होती है बाबू? वो एक क्राउड है और एक मॉब है, ठीक है। आप ऐसा समझ जाइए कि क्राउड जो है, अच्छा सबसे पहले होम मिनिस्टर कौन थे हमारे? सबसे पहले सब सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे फर्स्ट हम लोगों के होम मिनिस्टर जो है। तो क्राउड एक प्रकार के एक टर्म को डिनोट करता है होम मिनिस्टर टाइप में, बड़ा शांत रहता है लेकिन काम बहुत क्या करता है, सबसे बेहतर करता है होम मिनिस्टर वाला। और मॉब जो है वो भगत सिंह है। क्या है? हाँ, हमेशा जो है ऑन फायर रहता है। क्या रहता है? ऑन फायर, मतलब हाथ में पत्थर हमेशा रहता है सर फोड़ने के लिए। तो मॉब जो होता है वैसे फिर जो वायलेंट हो, वैसा फिर जो क्या हो, हम लोग क्या बोलते हैं? मॉब। क्राउड होती है, क्राउड झगड़ा करने के संदर्भ में मुख्य रूप से नहीं होती है, लेकिन बच्चे के संदर्भ में यूज करेंगे तो फिर वो अलग हो जाएगी। बच्चों के लिए ग्रुप यूज करेंगे। गर्ल्स एंड वुमेन के लिए बताइए, यही वर्ड थी जिसके लिए, इसके लिए बेबी। और ध्यान रखेंगे इसके साथ जो एग्जाम्पल दिया रहता है, बेबी के बगल में रहती है बेबी। क्या रहती है? अब बच्चे मार देते हैं ठीक कहां पे? बेबी पे बस रह जाते हैं। वास्तव में वो बेबी नहीं है, बेबी है। ओके, हाँ ना भूल। ओके, अब बॉयज है और स्टूडेंट है, इसके लिए आप क्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रुप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, सब में ग्रुप नहीं लिख सकते हैं। सिंगर्स के लिए बताइए, अ क्लास ऑफ गर्ल्स, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्लास ऑफ, देखिए अ क्लास ऑफ बॉयज भी नहीं होगा जहां तक हम बताते हैं। हम ये क्लास जो है, एक मिनट, हम ये क्लास यूज किए हैं किसके लिए? स्टूडेंट के लिए। ग्रुप के लिए बॉयज हो गया। क्या? बच्चा पढ़ने आता है तो पढ़ता कम है, सर्कल ज्यादा बनाता है, वही वाला सर्कल। तो ये बॉयज के लिए मेन रूप से यूज किया जाता है सर्कल। सिंगर्स के लिए बताइए, सिंगर, सिंगर के लिए हम लोग यूज करते हैं क्वायर। क्या यूज करते हैं? क्वायर। क्वीर नहीं पढ़ते हैं, क्वायर, CHOIR। यहाँ भी CH का प्रोनाउंसिएशन क है, च नहीं। अ डैश ऑफ ग्रास, ग्रास के समूह को हम लोग बोलते हैं टफ्ट। क्या बोलते हैं? टफ्ट। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट देखते हैं ना, तो उसमें जो ग्रास होती है उसको बोला जाता है टफ्ट। क्या बोला जाता है? और एक आम आदमी की जितनी कीमत होती है उतना ही ग्रास का कीमत होता है जो ग्राउंड में लगे होते हैं। उस पे पैर स्लिप होते हैं। हम लोग जब बचपन में क्रिकेट देखते थे तो पैर ऐसे स्लिप हो जाता था उस पे, तो हम लोग अपने वाले घास पे एक बार ऐसे पैर स्लिप किए, ऐसे ही गिरे, इसी में चोट लग गई। तो हम लोगों के घास पे पैर स्लिप नहीं होती है, टफ्ट पे स्लिप हो जाती है। अ डैश ऑफ हेयर, हेयर को क्या बोलते हैं? बोलिए। नहीं, हेयर को बोलते हैं लॉक। क्या बोलते हैं बुआ? और इस पे एक और इस पे एक किताब भी लिखी गई है, द रेप ऑफ लॉक। क्या लिखा गया है? बेन जॉनसन की एक किताब है, मॉक हेरोइक, जिसमें व्यंग किया गया है, उसका नाम है रेप ऑफ लॉक। लॉक का मतलब बाल का झुंड। उसमें एक प्रिंसेस की बाल काट ली जाती है, एक प्रिंसेस रहती है, उनकी बाल को क्या किया जाता है? पिछले साल भारत में भी हल्ला उठा था कि चाइना वाला कोई आकर के बाल काट रहा है।
बिल्कुल वही वाला। अ डैश ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के समूह को क्या बोलते हैं बुआ? बैंड। म्यूजिशियन के समूह को क्या बोलते हैं? बैंड। डांसर के समूह को क्या बोलते हैं? ट्रूप। क्या बोलते हैं? अ ट्रूप ऑफ डांसर। जजेस बेंच है जूड़ी। अच्छा बुआ, कार्ड एंड वुल्फ के समूह को क्लास, बोलिए। अ डेक ऑफ कार्ड भी होती है। अच्छा, जो क्लास 10 के बच्चे होंगे, क्लास 10 में एक चैप्टर होगा, वो कुत्ता का नाम क्या रहता है? स्नूपी। सेकंड नंबर चैप्टर है फर्स्ट, द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, एक चैप्टर है। अरे आपके पास 2 लिटरेचर की बुक है, तो उसमें सेकंड वाले में एक चैप्टर होगा द ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। तो उसमें एक, उसी में इस वर्ड का यूज किया गया हाउंड्स का, आप देख सकते हैं वहां पे। गार्बेज के समूह BOUQUET, a dash of banana, banana bunch, a dash of curtain, a dash of thieves and robber gang। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखें, कैटल का पुल्लल बना सकते हैं क्या? हम लोग कैटल का पुल्लल बना सकते हैं? नहीं, कैटल का पुल्लल नहीं बनाएंगे, ये ऑलरेडी पुल्लल है। इसमें कुछ सिंगुलर है, जैसे कि हेयर सिंगुलर है, पुल्लल नहीं बनेगी। ग्रास सिंगुलर है, पुल्लल नहीं बनेगी। ये ऑलरेडी पुल्लल है, इसलिए इसकी पुल्लल नहीं बनेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं। प्ले कर देता हूं, फिर अब हम लोग चलेंगे मटेरियल नाउन। क्या यहीं से लिखनी है? जिस जो टॉपिक है, जैसे हमने बताया कैटल पे खास ध्यान रखना है कि कैटल ऑलवेज क्या होती है? पुल्लल। और कैटल के समूह को बोलते हैं हर्ड। तो जितने भी जानवर हम लोग पालते हैं, जैसे काऊ हो गए, ऑक्स हो गए, बफेलो हो गए, हॉर्स हो गए, डियर हो गए, एलिफेंट हो गए, इस सारे को हम लोग किसमें रखते हैं? कैटल में, यानी हर्ड के ग्रुप में। किसमें रखेंगे? हर्ड में। अबाउट, अबाउट कलेक्टिव नाउन है जो ऑफन किए जाते हैं, बट आपको सारे नहीं, यहां नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, आप वहां से लर्न कर लीजिएगा। क्या? उसको राइट करके लानी है संडे को। आज सोमेन जहां सर कॉपी चेक किए हैं अटेंडेंस बोल करके, अगले दिन हम कॉपी चेक करेंगे। और हम कॉपी चेक करेंगे तो हम टोटली है कि चेक ही करते हैं। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो सारे चेक करेंगे। ओके, अभी तक जो हम पढ़ाए हैं वो सारे चेक करेंगे। दे हैव नॉट रिटन येट। अच्छा, आप में से कोई डाटम का सिंगुलर बता सकते हैं? डाटम का प्लुरल, डाटम का प्लुरल बता सकते हैं? क्या आप में से कोई डाटम का प्लुरल बता सकते हैं? नहीं जानते हैं ना? डाटम का डाटम का डाटम का प्लुरल क्या होगा? क्या होगा? क्या बोल रहा है? देखिए बताइए। और पता है, इसका जैसे ही हम प्लुरल बताएंगे तो सब कहेगा अच्छा ये होता है। देखिए मैं लिख के बताता हूँ। डाटम का प्लुरल होता है वो डेटा। क्या होता है? मतलब डेली डेली सुबह उठ करके 2 GB जो डेटा खाते हैं, वो डेटा का, डेटा जो है सिंगुलर है कि प्लुरल है आपको पता नहीं है। समझ में आ रही है? अच्छा बुआ, एक वर्ड है मीडियम। एक वर्ड क्या है? चलिए इसका भी प्लुरल बना लीजिए। उम्मीद है कि बना लीजिएगा, सेम रूल है। क्या क्या होगा बुआ? तो इससे रूल यही निकलती है कि यूएम हट गया, यूएम चेंज हो गई ए में, याद रहेगी। अब इसी को यहां पे एल्बम का एल्बा नहीं लिखिएगा,
पुलर एल्बम्स हो जाएगी। ओके, इस बन जाएगी। कुछ चेंज होती है, कुछ चेंज नहीं होती है। अब जैसे इसमें एक वर्ड आ जाएगी में, क्या हो गई? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का साइनोनिम होता है सोवेनिर। क्या होता है बुआ? वेट फॉर, इसका सिनोनिम क्या होता है बुआ? सोवेनिर। किसी को क्लास 9 वाले जो बच्चे होंगे, क्लास 9 में एक चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक, उसमें उसमें बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़नी है। तो बिस्मिल्लाह खां जब अफगानिस्तान घूमने गए हैं तो उनको वहाँ का जो राजा है बहुत सारे सोवेनिर देता है, यानी कि मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब स्मृति के रूप में दिया गया कोई चीज। इसका पुल्लल क्या होगा? मेमोरेंडा। क्या हो जाएगा बुआ? मेमोरेंडा। समझ में आई? हाँ, ओके नेक्स्ट। जब तक आप लिखेंगे हम कुछ क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं ना। अच्छा बुआ देखिए, इस वर्ड को भी अच्छे से देख लीजिएगा। एक वर्ड है JEAL और एक क्या है? ZEL। तो हम आप जानना चाहते हैं कि आपके अंदर इस दोनों में से कौन सा ज्यादा है? JEL ज्यादा है या ZEL ज्यादा है? ऊपर वाला, हाँ। हमको देख के ही लगा है कि तुम्हारे अंदर जेलसी, नफरत सबसे ज्यादा है, ठीक है ना? तो अगर आपके अंदर ये वाला ज्यादा है तो ये गलत है। किसी के लिए नफरत नहीं रखनी है। आपके आपके अंदर नीचे वाली होनी चाहिए। क्या? इसका मतलब होता है उत्साह। क्या होता है? तो हमारे अंदर किसी भी काम करने के लिए क्या होना चाहिए? जिल होना चाहिए, जेड वाला, जे वाला नहीं। लिख लीजिए, इसलिए बता दिया हूं। एक रूल आपका, दो रूल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, दो रूल आपका हम यहां करा दिए। एक एन का और एक द का, कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। क्या हो रहा है? मैथ बन रही है क्या? सर की हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है। सर शुरू से सही लिखते हैं। आप लोग तो मैथ पढ़ते हैं ना, तो चलिए मैथ पढ़। एक इसका तो इसका आप हमको पुल्लल बना के बता, इंडेक्स का पुल्लल बना के बता दीजिए। मैथ पढ़ते हैं तो हाँ? यही। अच्छा अच्छा, स्पेलिंग बताओ इंडिसेज का स्पेलिंग। सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े होंगे ना? सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं? क्लास 7 में है, क्लास 8 में है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। देखिए बुआ, इंडेक्स का दो पुल्लल होता है। इंडेक्स का कितना पुल्लल होता है? दो। एक इंडेक्सेस और दूसरा इंडाइसेस। तो ये मैथ्स में यूज किए जाते हैं। कहाँ पे? मैथ्स में इंडाइसेस। तो ये कहाँ यूज किए जाते हैं? इस इंडेक्स का मतलब होता है चैप्टर्स। क्या होता है? चैप्टर्स। ये चैप्टर के सेंस में है और ये मैथ का टर्म है। ऑलवेज पुल्लल हो गई। क्लियर? राइट कर लिया? जो कॉमन एंड की फैक्ट है उसको जरूर लिखेंगे। बुआ क्या नाम है तुम्हारा? फिर भूल गए। अनुराग, मेरे को याद आ गया। चलो अनुराग, रेडियस का पुल्लल बना दो। रेडियस का पुल्लल स्पेलिंग। वाह वाह, बैठ जाइए। आशुतोष तुम बता दो। रेशियो का पुल्लल बना दो।
रेशियो का प्लूरल। अब इसका कोई अब अब इसका कोई जवाब ही नहीं है। रेशियो का प्लूरल बनाइए। RATIO, रेटियो नहीं पढ़ना है उसको, रेशियो पढ़ना है। नहीं पता? रेशियो पढ़े हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तब तो याद होना चाहिए आपको। अब किन से पूछा जाए? ओल्ड फेसेस में रेशियो का प्लूरल रेशियाई, ऐसा कोई रूल होता है? एस लगेगी हुआ। किसी भी वर्ड के लास्ट में, किसी भी नाउन के लास्ट में अगर डबल ववेल हो, क्या हो? डबल ववेल, तो उसमें क्या यूज करना है? एस। जैसे ऑडियो है, वीडियो हो गए, रेडियो हो गए, रेशियो हो गए, इसमें दोनों में क्या है? डबल ववेल है। जैसे बम्बू हो गए, बम्बू जानते हैं ना, उसमें डबल ववेल होते हैं, तो वहां पे हम एस का ऐड करेंगे। तो जिस वर्ड के लास्ट में डबल ववेल हो, किसका ऐड करेंगे? एस का। अब इरेज करें बाबू? इरेज नहीं करनी, इसको प्ले करनी है आगे। अच्छा, इसमें बहुत कम है, लिखिए। किसको जाना है नीचे? हुआ, तुम उधर कैसे गया? तुम उधर कैसे गया? तो आ जाओ ना, उधर पूरा खाली, चलो इधर जाओ, इधर कोई नहीं, उधर जाओ। आज चलो आ जाओ, चेयर पे बैठ जाओ, चलो आ जाओ। या तो तुम उधर बैठो, नहीं तो यहाँ पे बैठो चेयर पे। हाँ बैठो, अच्छा है। तुम्हारा मौकरी खुद बन रहा है। रैप्स, अनुराग जो, ये क्या नाम है तुम्हारा बुआ? केशव। केशव जो है रैप्स के लिए है, क्या है? रैप्स के लिए मीनिंग घर पे सर्च कर लेना, ठीक? हाँ, अब हम ऐसा वर्ड का यूज है जिसका मीनिंग यहाँ पे किसी को पता नहीं है, तो बेइज्जती तो तुम्हारी हुई नहीं। चलिए बाबू, बात खत्म, लिखिए यहाँ पे, इरेज करे बाबू। रैप्सकेलियन पे जाकर के सर्च कर लेंगे, रैप्सकेलियन एंड कौन। हाँ, रैप्सकेलियन कौन, इसका सिनोनिम है बुआ ठग, क्या है इसका सिनोनिम? क्या है? रैप्सकेलियन, कौन एंड ठग, तीनों एक दूसरे, तीनों का मतलब एक जैसा है। और ये ठग जो है ना, ठग, ठग जानते हैं? ठग हिंदी वर्ड नहीं है, ठग इंग्लिश वर्ड है। ठग हिंदी वर्ड नहीं है, ठग क्या है? इंग्लिश वर्ड है। ठग मीन्स ठगना, ठग मीन्स ठगना, याद कर लीजिए। ठग नहीं रहे हो? अरेज करे बाबू? अरे क्या करते हो? ओके, लेट। डाकू, बैंडिट, महिला डाकू को बैंडिट कहते हैं। महिला डाकू को बैंडिट कहते हैं। बैंडिट मीन्स लुटेरा। आप लोग बहुत लिखने में टाइम ले रहे हैं ना? राइट। कहा है आधा हम लिखें? डॉट डालना है, हाँ वो डाल सकते हैं, नो इश्यू। आप ए के जगह पे डॉट डाल सकते हैं, ऑफ की जगह पे डाल सकते हैं, और सब तो चेंज करना ही पड़ेगी ना। कौन है इधर उधर से लिख रहा है? दिखाइए तो हुआ, जो अभी तक लिखे हैं वो दिखाइए। इसके पहले वाले स्लाइड में कुछ कलेक्टिव नाउन है, कहाँ लिखे हैं आप? हाँ,
यूट्यूब से काहे लिखेंगे, जब सामने लिखाया जा रहा है तो लिखेंगे ना। कहाँ पे डैश ऑफ सिंगर्स है, क्वायर होगा CHOIR, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स CHOI, क्वायर ऑफ सिंगर्स। tuft, TUFT, a tuft of grass, a lock, ये hair है, hair, a lock of hair, a band of musician, a troop of dancers, TROOP, a troop of dancers, a bunch of bananas, grapes, बच्चे इसमें से जो है जान पे जाकर 10 मिनट का समय देकर के इसको रीड करें। आप लोग बहुत स्लो लिखते हैं लेकिन ना, बाबू तुम तो लिखे होगे ना, वो क्यों लिख रहा है उसको, आप तो लिखे होगे ना क्लास, ये नहीं लिखा थे। सॉरी, पूरे पिक्चर जो है हम आपको भेज देंगे, आप बैठ बैठ करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और कलेक्टिव नाउन से आप कोशिश करेंगे कि कुछ सेंटेंस वाले एटलीस्ट में वो आपको हेल्प कर देगा। और नहीं तो अगर आप नहीं बनाएंगे तो हम ही बना के भेज देते हैं, आप घर पे बैठ के बनाइएगा क्या। लेट देम लाफ, लेट देम लाफ। Shall I go ahead? Okay. Now we will see the real noun that cannot be counted but weighed and measured. A noun that cannot be counted but weighed and measured. इसको हम लोग काउंट सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं बाबू, वे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वे एंड measure. A noun that cannot be counted, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं लेकिन क्या कर सकते हैं, वे कर सकते हैं और मीजर कर सकते हैं। वे का नाउन क्या बनेगा बुआ, वेट, और मीजर का तो जानते होंगे मेजरमेंट, क्या बनता है। तो
आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वेट का वर्ब क्या होता है, वेट का वर्ब क्या होता है, तो वेट का वर्ब वे होता है। क्लियर? इसको पढ़ते हैं वेट, इसको पढ़ते हैं वे। तो इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बट इसको वे कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, या इससे कोई चीज हम मेड कर सकते हैं या प्रिपेयर्ड कर सकते हैं। ठीक है? नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड बट वेड और मेजर्ड, पहला। दूसरा, अ नाउन बाय विच समथिंग इज मेड और प्रिपेयर्ड, जिसके द्वारा कोई चीज बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। जैसे हम लोग सैंड से बहुत सारे चीज बनाते हैं, स्टोन से भी बनाते हैं, इवन कि हम ब्रिक को काउंट कर सकते हैं, ब्रिक को। लेकिन ये मटेरियल नाउन है, ये क्या है? मटेरियल नाउन है, इसीलिए हम इसका यूज हमेशा मटेरियल के रूप में करेंगे। मटेरियल मींस ऑलवेज सिंगुलर, मटेरियल मींस ऑलवेज। स्टोन जो है इसको भी काउंट कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं, लेकिन इसका यूज हम मटेरियल के रूप में करेंगे, मींस ऑलवेज सिंगुलर। ओके? ऐसे ये ऑलवेज सिंगुलर होगा, लेकिन किसी को चलाकर मारने के सेंस में ये प्लुरल हो सकता है। समझ में आ गई? अगर पैकेट में 3-4 स्टोन रख के चलते हैं तो ये प्लुरल हो सकती है, लेकिन घर बनाने के सेंस में कभी भी प्लुरल नहीं होगी। बनाने के सेंस में हमेशा क्या होगा? सिंगुलर। और किसी को मारना हो तो ओके, गुड। अच्छा, वुड जो है, लकड़ी है, इससे बहुत सारी चीजें फर्नीचर बनाई जाती है, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन है। क्या है? और उसके अलावा देखिए, अब इसमें एक वर्ड आ जाएगी पर्ल। पर्ल, पर्ल में जानते हैं? मोती। मोती को हम लोग किसमें रखेंगे? इसको हम सिंगुलर प्लुरल दोनों बना सकते हैं, इसका सिंगुलर प्लुरल हम दोनों बनाते हैं। डायमंड का भी आप सिंगुलर प्लुरल दोनों बना सकते हैं। ठीक है? सिंगुलर बनेगी मटेरियल नाउन कहलाएगी, प्लुरल बनेगी कॉमन नाउन कहलाएगी। ये दोनों सेंस में बनती है, लेकिन इसका कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा, इसका कभी भी प्लुरल नहीं बनेगा। ग्रास क्या है हुआ? ग्रास, ग्रास क्या है? ग्रास अनकाउंटेबल जानते हैं। ग्रास आपका मटेरियल नाउन है। ग्रास क्या है? इससे क्या बनता है? तो जितनी भी कॉपी किताबें हैं किससे बनती है? कॉपी किताबें किससे बनती हैं? ग्रास से। अ टाइप ऑफ ग्रास से बनाई जाती है। इसको पेड़ से बनाए जाते हैं, तो पेड़ के क्या होते हैं? उसमें पत्ते होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। बंबू से बनाए जाते हैं, बंबू क्या है? लॉन्गेस्ट ग्रास है ना। तो ये ग्रास क्या है? एक मटेरियल नाउन है। अब एक बच्चा को मैंने पढ़ाया था कि ग्रास मटेरियल नाउन है। अब वो गया स्कूल में, तो उससे सर पूछे कि ग्रास कौन सा नाउन है, तो कहा मटेरियल नाउन। सर कह रहे नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर कहें उसको कि नहीं एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम कहे बच्चे को हम बताए थे कि ये मटेरियल नाउन है, ध्यान रखना है इसको। तो बच्चा कहा कि नहीं, मेरे सर बताए हैं कि ये मटेरियल नाउन है। तो कौन सर पढ़ाए हैं? तो वो बच्चा जो है मेरा नाम बताया, क्योंकि वो सर भी मुझे जानते हैं। तो सर कह रहा है कि अच्छा, मैं हरे ग्रास की बात नहीं कर रहा था, मैं सूखे ग्रास की बात कर रहा था। समझ में आ रही है? दैट्स अ डाइवर्टेड टॉपिक। मतलब इसको क्या कह सकते हैं? इसको अबट ऑफ लाभ है। ध्यान रखेंगे, ग्रास क्या है आपका? मटेरियल नाउन। तो खाने पीने की जितने चीजें हैं वो क्या है? खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, इवन फूड क्या है? मटेरियल नाउन है। मटेरियल बटर क्या है? मटेरियल चीज क्या है? मटेरियल। ये सारे के सारे मटेरियल है। तो मटेरियल नाउन होता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, वे कर सकते हैं, मीजर कर सकते हैं, या इससे हम कोई चीज बना सकते हैं। तो जिससे भी हम कोई चीज बनाएंगे वो मटेरियल नाउन में आएगी, और मटेरियल ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, उसका प्लुरल नहीं बनाएंगे। ओके, राइट करेंगे। अच्छा, तो एक क्वेश्चन तो बच गई। जैसे हमने एक वर्ड, हाँ, तो सवाल है कि वर्क जो है, काम, ये कौन सा नाउन है? क्योंकि इसके पहले मच का प्रयोग किया, मेनी का यूज नहीं किया। तो बताइए कौन सा नाउन है? वर्क जो है, ये वर्क, WO के वर्क, अगर इसका मतलब हो काम, लेबर, क्या मतलब है? अब लिख दिया हूं लेबर। लेबर कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। लेबर कौन सा नाउन? इसके पहले मेनी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? तो कॉमन नाउन। क्या? एनी वर्क्स, वर्क्स हो जाएगी।
अब यहाँ वर्क्स का मतलब लेबर नहीं होगा, इसका मतलब हो जाएगा वर्क में आप एस ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, इसलिए भूल करके भी इसमें एस आप ऐड नहीं करेंगे, और ऐड करेंगे तो उसका मीनिंग बुक बनना चाहिए तो सही हो जाएगी। ओके, कोई भी राइटर जो है बहुत सारे वर्क्स लिखते हैं, वर्क्स मीन्स बुक्स लिखते हैं। बोलिए बाबू, ये WEIGH वे, वे मीन्स होता है मापना, मेजर। एक होता है जब तराजू पे किसी चीज को मापते हैं तो उसको बोलते हैं वे, और किसी बर्तन से, कंटेनर से किसी चीज को मापते हैं तो उसको बोला जाता है मीजर। उसको क्या बोलते हैं? मीजर। कंटेनर से मापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मीजर। और तराजू पे मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? वे बोलते हैं। ध्यान रखिए। हाँ, नहीं रे बुआ, ग्रास सूखा हो चाहे हरा हो, होना तो उसको मटेरियल है। तो बच्चा है ना, बच्चे को लोग डांट के बैठा देता है ना। अगर मान लो तुम कोई क्वेश्चन पूछो इंग्लिश में, हमको नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? तुमको डांट के बैठा देंगे, कहानी खत्म। तुम बस पूछ के तो देखो, हालांकि ये और बात है कि तुम पूछोगे नहीं। ठीक है, अच्छी बात। डिक्शनरी इतना भारी लेके आ जाना चलेगा, डिक्शनरी इतना भी भारी लेके आ जाना चलेगा। हम तो एक्सपेक्ट करते हैं लिखने का भी तो मौका मिलेगा। मटेरियल नाउन समझ में आ गई? मटेरियल नाउन का प्लूरल बनाइएगा नहीं, ये ऑलवेज सिंगुलर होगी, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। हाँ, लेकिन अगर दो मटेरियल नाउन को एक साथ यूज करेंगे तो प्लूरल हो जाएगी, क्योंकि कभी भी हम लोग दो नाउन को एक साथ यूज करेंगे तो वो प्लूरल को डिनोट करेगी। क्लियर? अब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है? डिफिनीशन की जरूरत नहीं ना, आप लोग बच्चे थोड़े। कम हो, आप अकेले लिख रहे हो, आप बाद में लिख लीजिएगा, बगल से लिखिए तब तक। ये मतलब होता है किसी भी चीज को फील करना। क्या करना? फील करना। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या करना? फील करना। तो इसी से एक नाउन बन गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसा नाउन जिसको हम लोग फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिनोट करेगा, ये डिनोट करती है क्वालिटी को, क्वालिटी हुआ अवस्था, स्टेज बोल सकते हैं इसको। किस सेंस में? स्टेज के सेंस में। तो शो करती है क्वालिटी को, स्टेट को, स्टेज को, इमोशन को। किसको? इमोशन मतलब फीलिंग करेगी। किसको करेगी? बहुत ज्यादा दुख हो, खुश हो, सरप्राइज हो, सेटिस्फाइड हो, नॉट सेटिस्फाइड हो, इस प्रकार की इमोशन और फीलिंग को डिनोट करने के लिए किसका यूज करेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्वेश्चन है कि अगर आपको बनाना है नाउन तो कैसे बनाइएगा? गो का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो कैसे बनाइएगा? सबसे सिंपल क्वेश्चन है। गो तो आप लोग बहुत पढ़े हैं, चलिए गो का आप एक बार एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता दीजिए। गोज, गोज तो उसके फॉर्म है। हाँ, फॉर्म होती है गेट। क्या होती है गो का? बर्न का बताइए तो बुआ। का बर्न का ब्रांड, बर्न का क्या बनता है? ब्रांड। ऐसे बर्न मतलब आग लगना होता है ना, ब्रांड भी मार्केट में आग ही लगाता है। ठीक है। अब वो फीड का बताइए तो, फीड का बताइए। आप तो बहुत बार फीड पढ़े। फीड का क्या होता है? फूड। फीड का क्या होता है? दोनों जान रहे थे लेकिन एक दूसरे का है वो नहीं जान रहे थे। फीड का क्या बनता है? फूड। स्टील का क्या होता है बुआ? स्टोल। स्टील का स्टॉल मतलब छोटा सा दुकान। ये स्टॉल का मतलब होता है अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं कहीं पे, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो उसके लिए एक फ्रेज का यूज किया जाता है, स्टील द शो। क्या जाता हुआ? स्टील द शो। स्टील द शो का मतलब है आपने सबका दिल जीत लिया। तो ये तो भर में यूज कर दिए।
यहीं पे, तो यहाँ पे जो है यहीं पे बनेगा स्टोल द शो, ठीक है, दिल जीतना जीतना, ठीक, लिख लो दिल जीतना या सो जीतना, नहीं अच्छा बुआ, लॉन्ग का नाउन क्या होता है? लॉन्ग का लेंथ होता है, ब्रॉड का, लॉन्ग का लेंथ, ब्रॉड का ब्रेथ, वाइड का, है? कमजोर नहीं है इंग्लिश? अच्छा अच्छा, नहीं कहो तो कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता चल जाएगा कि हो। चलिए बाबू कुछ और देखते हैं। यस, ब्लैक में क्या जोड़िए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे? NES। बीजी का बिजनेस, वीक का, तो इसमें बहुत सारे वर्ड हैं जिसका हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। तो अभी हम सबको संक्षेप में बता देते हैं कि किसमें क्या करेंगे तो बन जाएगा। इसको लिखिए, सब बता देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के भी रूल हैं। आपकी ये जो ग्रामर चल रही है, कॉमन ग्रामर चल रही है, 7-8 के लिए तो बहुत बेहतरीन है। 9-10 के लिए फिर से एक अच्छी क्लासेस, जिसमें उनके जो टॉपिक हैं, टॉपिक हो जाएगा। और इसी में एक टॉपिक आएगी नाउन के बाद, इसका अगला चैप्टर प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, और प्रोनाउन से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत सारा सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो एडजेक्टिव में आपका एक चैप्टर टोटली क्लियर हो जाएगा, जिसका नाम है डिटर्मिनर्स। क्या नाम है? पढ़नी है ना डिटर्मिनर्स? तो एडजेक्टिव के चैप्टर में डिटर्मिनर्स के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे, एक भी सवाल नहीं बचेगा, और आपको पूरी आजादी है कि क्वेश्चन कहीं से भी लेकर के आ सकते हैं डिटर्मिनर्स में। हालांकि और बात है कि मैं जान रहा हूं कि आने वाला क्वेश्चन है नहीं। क्लासेस, हाँ, आपको 2 मिनट चाहिए? अभी अभी 20 मिनट्स है अटेंडेंस के। ओके, अभी 20 मिनट्स है मेरा अपना, और ये टॉपिक करने में टाइम थोड़ा सा जा सकता है। ओके सर, क्यों फिजिक्स पढ़नी है और मार खाने से डर लग रही है? फूड, ये नाउन, ये फूड जो है मटेरियल नाउन है, लेकिन फीड से फूड बनता है, मैंने नाउन बताया आप, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। इसमें कुछ चीजें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं बनेंगी, फीड से फूड बनता है जो उसका नाउन है, अनकाउंटेबल किया जाएगा। जब ऐसे लिखा हूं तो इसमें क्या है कि वास्तव में हम केवल अनकाउंटेबल नाउन लिख रहे हैं जो सिंगुलर के रूप में यूज होंगे। इसका एक पर्पस यही है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम लोग सिप ऐड करके उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। क्या? सिप। शुरू करें? लगभग इसमें कुछ कॉमन वर्ड है जिसमें आप अगर आप सिप ऐड कर देते हैं जाएगा। एक सबसे सिंपल, स्कॉलर में क्या ऐड करेंगे तो स्कॉलरशिप हो जाएगा। दूसरा हुआ फ्रेंड, तो फ्रेंड से फ्रेंडशिप। उसके बाद हुआ किंग, क्या है? किंग। उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ वार, क्या है? हुआ वार। उसके बाद है कंपेनियन, क्या वर्ड है?
कंपेनियन। रिलेटिव कब हुआ? रिलेशन लिख लो, क्या लिखो? रिलेशन। रिलेशन का रिलेशनशिप बनती है। ओके। अच्छा, किसी भी चीज में, अच्छा मेंबर, मेंबर से क्या बनेगी बुआ? तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनानी है, क्या ऐड करेंगे? सिप। इस सारे में सिप ऐड कीजिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गई। तो हम इसमें वैसे कोई मेरे को बताएगा, अच्छा वैसे मेरे को कोई बताएगा कि हुड का मतलब क्या होता है? अच्छा, किस किस रेप्टाइल के माउथ को, माउथ मतलब एक प्रकार का उसका फेस होता है जिसको हुड कहते हैं। एक रेप्टाइल है, जब वो बैठता है और अपना माउथ का शेप बनाता है तो उसको हम लोग हुड बोलते हैं। यू आर वेरी वेल। स्नेक, क्या बोलते हैं उसको? स्नेक। स्नेक का जो माउथ होता है, वो जो नागिन करती है ना ऐसे, उसको हुड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुड। लेकिन यहाँ पे हुड का मतलब है स्टेट। क्या है बुआ? स्टेट एक वर्ड लिखा है ना, अवस्था। तो जितने भी रिलेटिव है, जितने भी रिलेटिव है, सब में क्या लगा दीजिए? मदर, ब्रदर, सिस्टर, ओल्ड, टीचरशिप। ओल्ड, नेवर, प्राइस्ड। इन सब में क्या ऐड करेंगे बुआ? इन सब में हुड ऐड करेंगे और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। अब सबसे ज्यादा अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है तो वो बनती है नेस से। किससे बनती है? गुड, बैड, और भी किससे? किससे? ई, ए जी ई। देखो एज से भी क्या बनती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है। ये स्टेज ना, बोलिए। पैट्रोनेज, पैकेज, बिल्कुल सही है। पैकेज। पैट्रोन से क्या बनेगी बुआ? पैट्रोनेज। एक बच्ची से क्या बनेगा बुआ? से इसमें और है, सर को भी इतना ही ध्यान है। तीन एज, तीन एज अलग अलग लिखा हुआ है। डैमेज नहीं, डैमेज से नहीं बनेगी। डैमेज। अब ऐसा वर्ड है जिससे आप ए जी ई को हटाइए तो वो वर्ड क्या रहे? सुरक्षित रहे। अगर आप ए जी ई को हटा दे तो जो पिछला वर्ड है जिसको रूट वर्ड कहते हैं, उसका मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब डैमेज में ए जी ई को हटा देंगे तो क्या बनेगा? तो डैम से डैमेज बन जाएगा। पता नहीं, मेरे को तो नहीं पता है। डैम का मतलब होता है सुरक्षा, डैमेज का मतलब होता है ना, सवाल ही नहीं है क्या? एक दूसरे का अपोजिट हो जा रहा है। अभी हम लोग देखेंगे मेंट से। किससे देखेंगे बुआ? मेंट। फिर उसके बाद टी वाई और आई टी। हाँ बाबू करिए। जो किसी रूल पे नहीं मिले, उस रूल में एक चीज ध्यान रखना है कि एन ई डबल एस ऐड कर देनी है। जो रूल पे नहीं मिले, जो रूल पे मिल जाए तो
आप उसमें रूल के हिसाब से बना लीजिए। जैसे हाँ बोलिए। हाँ नहीं नहीं, एडजेक्टिव से पहले हर केस में एडवर्ब थोड़ी यूज करते हैं, कुछ केसेस में यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए नाउन के पहले, अब सवाल ये बनेगा कि हम लोग नाउन के पहले एडजेक्टिव क्यों यूज करते हैं। तो नाउन को इम्फेटिक बनाने के लिए हम नाउन से पहले एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब यूज क्यों करते हैं, क्योंकि उसको इम्फेटिक बनाना होता है। इंग्लिश में एक ही चीज सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, सेंटेंस को जितना इम्फेटिक बनाएंगे आपका डिस्क्रिप्टिव और राइटिंग उतना ही बेहतरीन बनेगा। इसीलिए जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच कुछ नहीं है, इम्फेसाइजिंग ऑफ द सेंटेंस है और कुछ नहीं। आप लोग कभी अगर इसमें से कोई बच्चे आगे लिटरेचर से पढ़ाई करेंगे, उम्मीद नहीं है कि कोई करेंगे, बट अगर कोई करेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, लिटरेचर पे अच्छा से ध्यान देके पढ़िएगा। और मेरे को तो ये बड़ा अच्छा सब्जेक्ट लगता है, हालांकि हमने इसको धोखे से ले लिया था। मैंने धोखे से लिया और पहला साल बहुत पश्चाताप किया, रिपेंट किया, पश्चाताप किया। भगवान के मंदिर में जाकर कहते भगवान गलती हो गया, इंग्लिश कहाँ से ले लिए, पल्ले नहीं पड़ रही है कुछ। लेकिन फिर जो है बहुत सारा चीजें, बहुत सारा चीजें हैं कि स्ट्रगल था कि पढ़ना है नहीं तो इससे कुछ मिलने वाला, फेल होने का हमेशा से डर रहा है, तो पढ़े अच्छा से। और पढ़ते पढ़ते अब लगता है कि नहीं ठीक पढ़े, जो भी पढ़े सो। तो आप लोगों को भी अगर कोई अगर इंग्लिश लिटरेचर से आगे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, इसमें कैरियर बहुत है। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि मैथ साइंस में ही केवल कैरियर है, इंग्लिश में भी कैरियर बहुत है, पर अगर आपको अच्छा से आता है तो। हम लोग ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो हम लोगों को बहुत सारा चीज पता चला कि अच्छा बाहर से करने पे हमको बहुत ज्यादा फायदा होता, जबकि हम ग्रेजुएशन यहीं से कर लिए थे। बाहर से करते तो रियली मेरे को बहुत फायदा होता। लिख लिए बाबू। अब अभी हम बताएंगे मेंट से, टी वाई से और आई टी वाई से। किससे? टी वाई और आई टी वाई को ऐड करके बताएंगे अभी। अच्छा एक एबिलिटी वाला भी तो बनेगी ना। अच्छा इस हटेगी तो सारा हटेगी ना। अच्छा इसको इरेज कर दें, इस पार्ट को इरेज हो जाएगी तो फिर फाइल दिखेगी भी नहीं ना। लिख ही लीजिए सारे, सेव भी नहीं होगी नहीं तो। मेरे बच्चे लोग कम से कम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो रूल है वो खत्म कर देते हैं। 10 मिनट का समय है, सर को भी 2 मिनट का समय देना है। नेक्स्ट क्लासेस में आपके नाउन नंबर चलेंगे, आज के क्लासेस में नाउन नंबर पॉसिबल नहीं है। जेंडर का कोई महत्व नहीं है, इंग्लिश ग्रामर में जाने तो जेंडर का कोई महत्व नहीं है। बस जेंडर इतना ही बताऊंगा कि अगर मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन जेंडर है तो ही वाले फॉर्म को फॉलो करेंगे, फेमिनिन है तो सी वाले फॉर्म को फॉलो करेंगे, कॉमन है तो ही और सी दोनों को फॉलो कर सकते हैं। हुआ, प्ले करें आगे, लिख लिए। ओके नेक्स्ट, इसमें अब हम क्या ऐड करें। जैसे एक वर्ड है हुआ एबल, एबल का बनता है एबिलिटी, क्या बनता है हुआ एबिलिटी बनेगी। इसमें कुछ चेंजेज होते हैं, क्या होते हैं? चेंज कैसे हुआ सो देखेंगे। एबल से क्या बनी एबिलिटी, ए बी आई, फिर एल आई, फिर टी वाई। अब इसी पे आप बना सकते हैं कैपेबल, इसी से बना आप, वो भी बता दो। एबल हो गया, कैपेबल हो गया। पहले जिसमें एबल लगे हुए हैं वो वर्ड बताइए। एक तो हो गया एबल, कैपेबल, वो हो गए, और बताइए। एबल, अनएबल, अवेलेबल, अवेलेबल, अनअवेलेबल, वो भी लिख सकते हैं अनअवेलेबल, डिसेबल। सब बनाने का तरीका वही है, डिसेबल, एबल में एबिलिटी लिखते हैं, बी आई एल आई टी वाई। थोड़ा सा चेंज कर, इसमें चेंज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हमने पहला आपको लिख दिया। ओके, इसमें जिसमें हम कम्यून
में से कम्युनिटी, कम्युनिटी तो वो कम्यून से बनती है। किससे बनती है? कम्यून से। कम्यून का मतलब क्या होता है? कम्यून वो कम्युनिकेट से बनता है, वो कम्युनिकेट से कम्युनिकेशन बनेगी, यह है कम्यून। कम्यून का मतलब होता है संघ। क्या होता है? संघ। इसी से बनता है कम्युनिटी, एक संघ के समूह को बोलते हैं। मेरे को ज्यादा यादें नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? हाँ, मेंटल, मेंटालिटी, फैटाल। ओके, आप राइट करें इसको। डांस नहीं करनी है, ठीक है? अब इसमें से बहुत को मन होगा कि पतंग बन के अभी उड़ जाए, नहीं उड़ना, अभी कट जाएगा, ठीक है? भोजपुरी गाना पे सब किसी को डांस करने का मन करता है, स्वाभाविक सी बात है। नो नो, आई नो। कुछ वर्ड है बाबू। हिल से क्या बनेगा? हिल से व्हील से वेल। मतलब क्या होता है? व्हील मीन्स क्या होता है? व्हील बताइए। वो एक दूसरे का एंटोनिम है। व्हील वो एक दूसरे का एंटोनिम है, बताइए। व्हील का मतलब क्या होगा? हाँ, WEAL, व्हील। व्हील का मतलब होता है वो हैप्पीनेस। क्या होता है वो? हैप्पी, हैप्पीनेस। सैडनेस। विल का होता है वो, जैसे फ्रेंड का होता है फो। ऐसे ही कुछ आपको और मिलेंगे क्लासेस में। हम लोग इतना ही देखेंगे, जो रेस्ट है हम लोग अगले क्लासेस में देखेंगे। रेस्ट मतलब अब हम लोग अगले क्लासेस में नंबर पढ़ेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सर, सर कुछ बोलेंगे अभी? ठीक है, जाइए आप। है ना? नहीं, मेरा उसी बात है कि हम जब बोलते हैं तो सुनाई देता है, उनको जरूरत नहीं, मतलब पूरा स्टेडियम सुन ले, माता रानी की दया से इतनी है ना? सो जोक्स अपार्ट, okay, so we have something for you guys. Basically what we did है ना, infuses something which is new and something which is important for not only you guys but also for everyone, है ना? है क्या वो? हम लोगों ने क्या किया है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम जैन टू लास्ट दिसंबर, यू कैन से पूरे इंडिया में अपने एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना, जो भी हम लोग डेज सेलिब्रेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल 21 जून आई बिलीव दैट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल योगा डे, राइट? मालूम था? सो सपोज इंटरनेशनल योगा डे है ये, है ना? तो अपन लोग क्या करेंगे अभी से, है ना, वी विल हैव अ शॉर्ट स्पीच ऑन एवरी डे। वी प्लान दैट एवरी स्टूडेंट, वी हैव अ चार्ट कि कौन स्टूडेंट किस चीज पे स्पीच देगा। वी हैव अ विक्ट्री स्टैंड ओवर देयर, एक पिक्चर है वहां पे बना हुआ है बैकग्राउंड हमारा, उसी बैकग्राउंड पे आपको खड़े होना है। जिनका भी ओवरऑल नाम रहेगा आपको स्पीच कोचिंग की तरफ से तैयार करके मिलेगी प्रॉपर वे में। यू हैव टू प्रिपेयर इट फॉर दैट डे ऑफ स्पीच डे, एंड आपको उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, कल, इट मीन्स टुमारो इज 11th, राइट? टुमारो इज 11th अप्रैल, है या नहीं? So tomorrow is April 11th, and do you know what day is tomorrow? नहीं, Monday is the day, yes.
day. But do you know what day is tomorrow? Tomorrow is National Safe Motherhood Day. नेशनल सेफ मदरहुड डे है कल. एंड ना आपको पता था, जैसे आपको नहीं पता था, वैसे ही प्रोबेबली दिस इज नॉट नोन बाय मोस्ट ऑफ द पीपल, है ना. सो वी हैव अ टू agenda behind this system, that first of all you guys get aware with all these days, somehow a kind of general knowledge and kind of new information you will gather. Second thing is that the world, the nation, because we are having our Fusis champs and Mata Rani ki daya se it is growing very rapidly. We have still now in these 10 days maximum, we started classes from 21st of March and today is 10th of April. So in these 20 days we are having now 145 subscribers. So it's growing very rapidly. है ना. माता रानी की दया से it will grow more. इस साल का टारगेट है कि within the 6 months we will cross 1K and we will now then have a live. तो recording बंद हो जाएगी, we will do directly live from that our channel. So channel के through we will aware not only ourselves but also the whole India. है ना. अपने इस एजेंडा प्रोग्राम का नाम है चलो विश्व को जाने. ठीक है, चलो विश्व को जाने. दिस इज द स्लोगन, यू कैन से द थीम लाइन ऑफ आवर प्रोग्राम विच वी आर स्टार्टिंग. ठीक है. एंड आई हैव अ लिस्ट ऑफ डेज एंड लिस्ट ऑफ नेम्स द स्टूडेंट्स, वन हु विल परफॉर्म दीज स्पीचेस फॉर द अप्रैल मंथ. एक स्टूडेंट की बारी ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने पे आएगी. थर्ड, द बेनिफिशियल वर्क. आप सबको बोलना आएगा. सबसे बड़ी बात, यू विल बी गेट अवेयर दैट हाउ टू स्पीक, हाउ टू गिव अ स्पीच. सो योर ओन, है ना, यू कैन से पर्सनल, है ना, पर्सनल development, personality development will also take place through this program. So I have some announcement, like tomorrow 11th April 2022 we are starting from class 8, a National Safe Motherhood Day. This speech will given by class 8 Soumya. Okay. Similarly 13th April is Jallianwala Bagh Massacre Day, and this is from class 10th Ayushman. Then again 17th of April, World Hemophilia Day it is, and this is from class 9th Divya Joshi. Similarly 18th of April, next day, World Heritage Day it is, and the speech was given by class 7, class 7 Ayushi, it's Nikhil class 10, from class 10 Nikhil. Similarly 19th of April, World Liver Day, and class 10th Ritika. Similarly 21st April, Civil Service Day, National Civil Service Day, and this will be from class 9th Shita. Similarly 22nd of April, Earth Day, and Earth Day will perform by again from class what? Class 10th, and this is Anurag. Similarly we have 23rd April, World Book and Copyright Day, class 8 Yash Ranjan. 24th April, National Panchayati Day, it is Krishna Mohan from class 10th. 25th of April, World Malaria Day, Hana, you don't know about it, class 7th Lakshit. Similarly 26th April, World Intellectual Property Day, it will be class 8 Ayush. Similarly 27th of April, World Veterinary Day, class 9th Asutosh. Okay, and similarly 28th of April, World Day for Safety and Health at Work, class 10th Minakshi. 29th of April, International Dance Day, and this is from class 9th Kanishka. 30th of April, Ayushman Bharat Divas, 30th of April, and from class 7 Yash Kumar. So we have a schedule for the whole April. Similarly, a new schedule will prepare for May. Similarly, we have June. So for every month we have a schedule. You guys will given the speech. We will provide you a speech.
you have to prepare it only for that and you have to deliver it over that victory stand. Maximum 5-7-10 लाइन का स्पीच है छोटू सा and maximum 5-7 मिनट का वीडियो होगा. So we will aware ourselves as well as the whole nation. Let's go for विश्व को जाने, है ना. चलो कुछ नया करते हैं, कुछ धमाल करते हैं, बेमिसाल करते हैं और कमाल करते हैं. ठीक है ना. चलो गुड डे, टेक केयर, बाय बाय. मिलेंगे हम लोग अपने रेगुलर क्लासेस में ऊपर.